Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing well and you all are in good health and iman. This is a video lesson of subject English for class 2. Today the date is 22nd June 2020 and the day is Monday. Dear students, as you all know that these video lessons are presented to you by Pakistan Overseas and Dr. Millat Higher Secondary School Mandir. Let's have a look at the vision and mission of the school. Okay students, our message of the week is Hadith. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादातु, दुआ करना एन इबादत है. ये हमारा मैसेज ऑफ द वीक है. Okay, now let's start our today's lesson. Today we shall do unit number 8, good manners. आज हम good manners अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे. Okay students, this is a lesson number 1 of week 4 and in this lesson we shall cover reading of unit number 8 which is good manners and we shall also do a writing practice. Students, kindly open your unit number 8 good manners. In this lesson we shall learn some good manners. हम कुछ अच्छे manners सीखेंगे और उनकी रीडिंग भी करेंगे. आप सब लोग अपने पास एक लेड पेंसिल रखेंगे. न्यू वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट अ टुडेज लेसन. स्टूडेंट्स, अपना पेज नंबर 42 जो है वो ओपन करें आप लोग. ओके, लेट्स स्टार्ट. लास्ट वीक अहमद, जुनेद, अलीना एंड सना वर मेकिंग पोस्टर्स विद देयर क्लासमेट्स. Last week, Ahmad, Junaid, Alina and Sana were making posters, underline the word posters, with their classmates, underline the word classmates. Miss Sana asked them to make posters about good manners and habits at school, underline the word manners and habits, at a dining table, underline the word dining, at home and at market. She told them that good manners and habits can help us become good people and good citizens. Underline the word citizens. As Muslims, we must try to practice, underline the word practice, good manners and habits all the time in all places. When we practice, underline the word practice, good manners all the time, we become good humans. Let's read it again. Last week, Ahmad, Junaid, Alina and Sana were making posters with their classmates. लास्ट वीक अहमद, जुनेद, अलीना और सना अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके पोस्टर्स बना रहे थे. मिस सना आस्क्ड देम टू मेक पोस्टर्स अबाउट गुड मैनर्स. मिस सना आस्क्ड देम टू मेक पोस्टर्स अबाउट गुड मैनर्स एंड हैबिट्स एट स्कूल. मिस सना ने उनसे कहा कि वो पोस्टर्स बनाएं गुड मैनर्स के बारे में और हैबिट्स के बारे में स्कूल में जो हमें जो फॉलो करनी चाहिए. एट डाइनिंग टेबल पर, खाने के मेज़ पर. एट होम, घर में. एंड एट द मार्केट, और बाजार में. शी टोल्ड देम दैट गुड मैनर्स एंड हैबिट्स कैन हेल्प अस बिकम गुड पीपल एंड गुड सिटीजन्स. उनकी टीचर ने बताया उनको कि अच्छे अखलाक और आदतें हमें अच्छा इंसान बनाती हैं और अच्छा शहरी बनाती हैं. गुड सिटीजन्स, अच्छा शहरी. एज मुस्लिम्स वी मस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस गुड मैनर्स एंड हैबिट्स ऑल द टाइम इन ऑल प्लेसेस. एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें अच्छे अखलाक और अच्छी आदतों का मुजाहरा करना चाहिए हर जगह पे और हमेशा. When we practice good manners all the time, we become good humans. जब हम अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं हर टाइम, हर वक्त, तो हम अच्छे इंसान बनते हैं. I hope you have a clear understanding of this reading. Okay, now come towards the next page. आपका बुक पे पेज नंबर वही है 42. When the posters were completed,
they presented them in the morning assembly. When the posters were completed, they presented them in their morning assembly. They told the students about the importance of good manners. When the posters were completed, underline the word completed, they presented, underline the word presented, them in their morning assembly, underline the word assembly, assembly. They told the students about the importance, underline this word importance, of good manners, underline this word manners. जब पोस्टर्स कंप्लीट हो गए, मुकम्मल हो गए, तो उन्होंने अपनी मॉर्निंग असेंबली में, सुबह की असेंबली में उनको प्रेजेंट किया. दे टोल्ड द स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया गुड मैनर्स, अच्छे अखलाक की अहमियत के बारे में. तो सबसे पहला जो पोस्टर उन्होंने बनाया वो था मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल, खाने की मेज़ पर मैनर्स जो हैं, जो आपने फॉलो करने हैं वो. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमेशा हर खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं. च्यू फूड विद योर माउथ क्लोज्ड, खाना चबाकर और मुंह बंद करके खाएं. ऑलवेज ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग, बैठने से पहले हमेशा पानी पिएं. ईट फूड विद योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से खाना खाएं. ऑलवेज रिमेंबर टू से बिस्मिल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा याद रखें बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना. अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह कहना याद रखें. कवर योर माउथ इफ़ यू हैव टू स्नीज और बर्प, कवर योर माउथ इफ़ यू हैव टू स्नीज और बर्प. अगर आपको छींक आ रही है या डकार आ रहा है तो आप अपने मुंह को कवर करेंगे, डांप लेंगे. ओके, दोबारा से इसको पढ़ते हैं. मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. च्यू फूड विद योर माउथ क्लोज्ड, च्यू फूड विद योर माउथ क्लोज्ड. ऑलवेज ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग. Eat food with your right hand. Always remember to say Bismillah and Alhamdulillah. Cover your mouth if you have to sneeze or burp. I hope you have a clear understanding of this. Students, now come towards your page number 43. These are the manners at home. घर में जिन manners को आपने follow करना है वो देखेंगे आप. ये उनका दूसरा पोस्टर था. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या है हमारे पास. कीप योर होम नीट एंड क्लीन, अपने घर को साफ सुथरा रखें. हेल्प योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इन द हाउस, अपने वालिदैन, दादा दादी या नाना नानी और अपने बहन भाइयों की मदद करें घर में. व्हेन गेस्ट और नेबर्स कम, ग्रीट देम विद अ स्माइल, जब मेहमान या हमसाए आएँ आपके घर में तो उनको मुस्कुराहट के साथ मिले. से सॉरी इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, अगर आपसे कोई गलती हो गई है या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसके लिए सॉरी कहें, माफ़ी मांगें. होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन कमिंग इन, स्पेशली इफ़ दे आर कैरिंग समथिंग. अगर कोई आपके घर में आ रहा है या आप उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे, स्पेशली उस वक़्त, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उन्होंने कुछ वज़नी उठाया हो तो उनके लिए दरवाज़ा खोल दें. ये भी घर में मैनर्स में आता है. ओके, तो दोबारा से इसको पढ़ते हैं. कीप योर होम नीट एंड क्लीन. हेल्प योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इन द हाउस. व्हेन गेस्ट और नेबर्स कम, ग्रीट देम विद अ स्माइल. से सॉरी इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. होल्ड द डोर ओपन फॉर समवन कमिंग इन, स्पेशली इफ़ दे आर कैरिंग समथिंग. Read it again. Keep your home neat and clean. Help your parents, grandparents and siblings in the house. When guests or neighbors come, greet them with a smile. Say sorry if you have done something wrong. Hold the door open for someone coming in, especially if they are carrying something. Okay, next page पे आ जाएं. आपका पेज नंबर 43 ही है. Manners at school. स्कूल में आपने किन मैनर्स को फॉलो करना है और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है. मैनर्स हैं आपके
ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स जो है उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, इज्जत के साथ उनको मिलेंगे। शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लास फेलोज, आपके हम जमात जो हैं उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे आप। रिटर्न थिंग्स यू बोरो, जो चीज़ें आप लेते हैं उनको वापस भी करेंगे। लिसन टू योर टीचर्स केयरफुली, अपने टीचर्स को एहतियात के साथ और गौर से सुने। आस्क परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर, अगर आपको वॉशरूम जाना है या आपको पानी पीने के लिए जाना है बाहर तो पहले परमिशन लेंगे और फिर आप जाएंगे। बी पोलाइट एंड रिमेंबर टू यूज द कर्टसी वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू। बी पोलाइट, नरम मिजाज रहें, एंड रिमेंबर टू यूज द कर्टसी वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू। और ये कर्टसी वर्ड्स होते हैं कुछ, इनको यूज़ करें जब आप आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ वर्ड बोलेंगे। अगर आपकी किसी ने हेल्प की है या आपके साथ किसी ने कोई चीज़ शेयर की है तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे। ओके, दीज आर द कर्टसी वर्ड्स। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स, रिटर्न थिंग्स यू बोरो, लिसन टू योर टीचर्स केयरफुली, आस्क परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम, अंडरलाइन दिस वर्ड वॉशरूम, अंडरलाइन द वर्ड परमिशन, underline the word classmates. Okay. Be polite and remember to use the courtesy words. Underline this word courtesy. Polite. Okay. I hope you have a clear understanding of this. Okay. ये भी आपके स्कूल के जो मैनर्स हैं उन्हीं में है। Do not make fun of others. दूसरों का मजाक मत बनाएं। Raise your hand and wait for your turn. Underline the word raise. Raise your hand and wait for your turn. अपना हाथ उठाएं। अगर आपसे कोई टीचर क्वेश्चन कर रही हैं तो आप उसके लिए अपना हैंड जो है उसको रेज करेंगे, अपना हाथ उठाएंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, अपने काम को वक्त पर मुकम्मल करें। कीप योर स्कूल क्लीन बाय थ्रोइंग द रैपर्स इन द डस्टबिन, अपने स्कूल को साफ सुथरा रखें। किस तरह से? अब जो रैपर्स हैं, जो चीज़ें आप लेते हैं कैंटीन वगैरह से, उनके रैपर्स जो हैं उनको डस्टबिन में फेंक कर। कीप योर स्कूल क्लीन बाय थ्रोइंग, अंडरलाइन द वर्ड थ्रोइंग, अंडरलाइन द वर्ड रैपर्स एंड आल्सो अंडरलाइन द वर्ड डस्टबिन। ड्यूरिंग ब्रेक टाइम प्ले टुगेदर एंड नेवर पुश एनीवन, ब्रेक के दौरान आपको जब ब्रेक होती है, ब्रेक का टाइम होता है, तो उसके दौरान तफरी के वक्त में प्ले टुगेदर, इकट्ठे खेलें। एंड नेवर पुश एनीवन, और एक दूसरे को या किसी को भी धक्का मत दें। एट होम टाइम क्यू अप क्वाइटली, क्यू कहते हैं लाइन बनाने को, अंडरलाइन दिस वर्ड क्यू। छुट्टी के टाइम पे, ऑफ टाइम पे, जब आपको छुट्टी होती है तो खामोशी से लाइन बनाएं या लाइन में खड़े हो जाएं। मैनर्स एट द मार्केट, अब हमारे पास मैनर्स एट द मार्केट ये वाला पोस्टर है। वॉक विद योर एल्डर्स इन द मार्केट, बड़ों के साथ जो है मार्केट में जाएं, बाजार चलें। डू नॉट थ्रो रैपर्स इन द शॉप्स एंड स्ट्रीट्स, रैपर्स को गलियों या दुकानों में मत फेंकें। डू नॉट रन अराउंड, इधर उधर मत भागें। लिसन टू योर पेरेंट्स एंड डू नॉट बी स्टबबॉर्न, अपने पेरेंट्स की बात सुने, वालिदैन की बात सुने और ज़िद्दी मत बने। स्टबबॉर्न का मतलब होता है ज़िद्दी। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। वॉक विद योर एल्डर्स इन द मार्केट, डू नॉट थ्रो रैपर्स इन द शॉप्स एंड स्ट्रीट्स, डू नॉट रन अराउंड, underline the word around, listen to your parents and do not be stubborn. Okay, come to the next page. Your page number is still 43 और हम अभी मार्केट के मैनर्स को ही पढ़ रहे हैं। इफ यू डू नॉट रियली नीड समथिंग डोंट इंसिस्ट ऑन बाइंग इट, इसको आप पढ़ते हैं डू नॉट, डोंट। ओके, इफ़ यू डोंट रियली नीड समथिंग, अगर आपको किसी चीज़ की हकीकतन या वाकई में ज़रूरत नहीं है, डू नॉट इंसिस्ट ऑन बाइंग इट, तो इसको खरीदने पर जोर मत दें। डू नॉट टच और पिक एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द शॉपकीपर, डू नॉट टच और पिक एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द शॉपकीपर, दुकानदार की
इजाज़त के बगैर किसी भी चीज़ को उठाना या हाथ लगाना नहीं चाहिए। डू नॉट टच और पिक एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द शॉपकीपर। दुकानदार की मर्जी के बगैर किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाएं या उसको मत उठाएं। आई होप यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ये मैनर्स आप लोगों ने अपनी लाइफ में इनको अडॉप्ट भी करना है। ओके, दिस वॉज द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 8 गुड मैनर्स। आप लोगों ने इस रीडिंग को करना भी है, खुद भी ट्वाइस और थ्राइस आप लोगों ने इसको घर में करना है। साथ में जो आपने न्यू वर्ड सीखे हैं उनको प्रोनाउंस करना भी जो है वो सीखना है। नाउ कम टू वर्ड्स योर हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। आपने अपनी हैंड राइटिंग पर भी वर्क करना है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द बेस्ट हैंड राइटिंग। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द बेस्ट हैंड राइटिंग। इस सेंटेंस को आपने अपनी बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखना है। राइटिंग को रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है, स्ट्रेट लाइंस पे लिखना है और सीधा लिखना है, वर्ड्स को बनाकर लिखना है। ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, इसलिए इसको बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करनी है। आपके समर वेकेशन में जितनी भी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस दी गई हैं आपने उनको अच्छे से करना है। तो सेंटेंस है हमारे पास, रमदान इज़ द मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स। रमदान इज़ द मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स। ये आपकी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है, इसको आपने समर वेकेशन वर्क पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग एंड टू टुडेज लेसन। ये आपका डायरी वर्क है, इसको नोट कर लें आप लोग। आप लोगों ने यूनिट नंबर 8 गुड मैनर्स की रीडिंग करनी है। डू रीडिंग एंड आल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोगों ने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 8 गुड मैनर्स की और साथ साथ इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपका डायरी वर्क है, होम असाइनमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग एंड टू टुडेज क्लास। टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।